Good morning, dear students. Welcome in online classes. Dear students, according to UG's syllabus of 2021 and 22, in your civics portion, that is the last chapter, local self-government in rural areas, we know that there are three levels of the government in whole country. First one known as the union or central government, second state government, and third one local government at the grass root. So in this chapter we already discussed about that what is the meaning of the term local self government. For effective governance of India, our democratic structure has three levels, namely the union or central government, state governments, and the local government at the grassroots. Okay, governments at the local government at grassroots is known as the local self-government. Especially the governance at the grassroots level is done through the two types of government: Panchayati Raj institution for the rural areas development and the municipal institution in urban areas development. Both the Panchayati Raj institution and the municipal institution are called the institution of local self-government jointly. So dear students, let us see how the local self-government permanently, directly overall development, how it possible into the local areas like that rural areas and the urban areas. We know as our country is a democratic country, and for democratic structures has three levels of the government, namely union or central government, state government, and the local government at the grassroots. For the village development, the local self-government known as the local self-government in rural area Panchayati Raj system. Okay, first of all, today we will again discuss about that what was the difference between local government and the local self-government. But there is a distinction between the local self-government and the local government. What is the difference? Local government means the administrations of a locality. What is locality? Like that a district or subdivision or tehsil by officials appointed by the government. Okay, it is known as the local government. And local self-government on the other hand means the management of the local amenities by the residents of the locality through their own elected representative. Means local government क्या है, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर, तहसील लेवल पर जो ऑफिशियल्स हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो लोकल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, वो ऑफिशियल हैं, उनको सैलरी पे की जाती है. और जो सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि जो रेजिडेंशियल, जिस रेजिडेंशियल का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपॉइंट होगा वो अपॉइंटेड नहीं होगा, बल्कि उसको उस लोकेलिटी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करते हैं. मतलब दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. एक तो हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था जो उस लोकेलिटी का होगा किसके हाथ में होगा? एट ए डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न और तहसील बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. मतलब लोकल गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहता है उसको क्या करती है, उन अधिकारियों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. और लोकल जहाँ सेल्फ वर्ड यूज हो रहा है सेल्फ गवर्नमेंट में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उस एरिया के रेजिडेंट्स के लोग इलेक्ट करते हैं, तब वो वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनते हैं. इन केस इफ़ यू सी इन द न्यू वर्ड्स हियर आल्सो क्लियर, local self-government, the term local self-government means management of the local affairs, management of the local affair by the residents of the areas through elected representative. I hope that clear. After that, importance of local self-government in the Indian setup. Okay, what is the importance? Actually our country is a most populous country, second world largest populous country. So this is the importance of the local self-government in the Indian setup lies in the manifold advantages noted below. कई सारे इसके एडवांटेज हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. पहला तो यही है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ पावर शेयरिंग एंड डेमोक्रेसी. हाँ, डेमोक्रेसी में जो पावर का शेयरिंग है खास करके लोकल एरिया रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द रूरल एरिया. सेकंड, it promotes decentralizations
a way through which certain power are taken away from central and state government and given to local government. Yes, it is also very important. Certain power are taken away from central and state government and given to local government. कुछ ऐसी पावर हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है ताकि लोकल अफेयर या लोकल गवर्नमेंट अपने एरियाज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके. The basic ideas behind the decentralizations is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. Yes, बहुत सारी problems ऐसे होती हैं, बहुत सारे issues ऐसे होते हैं जो local level पर होती है, गाँव में होती है, छोटे छोटे कस्बों में होती है. People have better knowledge of the problems in their localities, और वहाँ के लोग इस problem को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो लोग वहाँ रहते हैं. They also have better ideas on the where to spend money and how to manage थिंग्स मोर इफेक्टिवली. यस, और उन्हीं लोगों को जो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानते हैं, जो उस लोकेलिटी में रहते हैं, उन लोगों को ये अच्छी तरह पता भी होता है कि कितने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से पैसे को खर्च किया जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए. बिसाइड एट द लोकल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग. यस, इस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अगर वहाँ के कॉमन पीपल्स को उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं तो शायद जो उनका डिसीजन होगा वो बहुत ही पॉसिबल होगा कि उस प्रॉब्लम को लोग, वहाँ के लोग के डिसीजन के बाद सॉल्व किया जा सके. इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, बिकॉज दिस हेल्प टू इनकल्कुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक participation. So dear students, if you see about that importance, there's so many important of the local self-government. The local self-government in the Indian setup is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and the municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Yes, अगर अपने देश की हम बात करें तो आज के डेट में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो पंचायती राज में और म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनके द्वारा कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाती हैं, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री होने के नाते हमारे देश में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर वहाँ के लोगों के द्वारा कराती है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. यस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक देश है, चूँकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ की कॉमन पीपल का वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये इसकी गारंटी लेता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो यहाँ के लोगों की वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेगी. इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट हैज़ आल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशंस एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी. यस, महिलाओं की भागीदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी होती है और इसका स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया है कि कुछ सीट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीट को रिजर्व किया जाए ताकि डेमोक्रेसी को अच्छे से रन कराया जा सके. अब बात करते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट करने के लिए है, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और इसका आइडिया बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था. क्या था बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके क्या रोल हैं, या बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो डिसीजन दिया गया गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको सेटअप किया गया. सो सी, बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1957 टू रिव्यू द लॉज ऑफ वेरियस स्टेट्स रिगार्डिंग सेटिंग अप अ पंचायत. ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में अपॉइंट किया गया, जिसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पूरे भारत में डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह के पंचायत्स को डेवलप किया जाए और इसको डेवलप करने के लिए कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए. इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन 1958, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को 1958 में दिया. दिस कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज. ओके, इस कमेटी ने गवर्नमेंट को एक इंट्रोडक्शन में 3 टायर स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहा, जिसको हम 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज के नाम से जानते हैं. दिस इंक्लूडेड, इन 3 टायर में क्या क्या इंक्लूड किया गया, विलेज पंचायत फॉर द एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद
at the district level. Means in 3-tier structure of the Panchayati Raj system, there are 3 different names. It included the village panchayat at the village level, the Panchayat Samiti at the block level, Panchayat Samiti also known as the block Samiti in many different state, and last the Jila Parishad at the district level. After the 73rd amendment of the constitution, amendment matlab संशोधन, constitution passed in 1992 added the new 11th schedule to the constitutions. This schedule provided guidelines for the enforcement of new Panchayati Acts in the states. Later, to streamline the Panchayati Raj system, the Panchayati Raj Act of April 24, 1993 ensured decentralized and devolutions of power to the panchayats. All the states have now amended their Panchayati Raj Acts in accordance with these guidelines by April 23, 1994. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया, जिसको ऐड किया गया ये हमारा 11th शेड्यूल था। कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ उसमें इसको ऐड कर लिया गया और सभी राज्यों को ये निर्देश कर दिया गया कि हर राज्य पंचायती राज सिस्टम एक्ट जो अप्रैल 24, 1993 से लागू होगा, इसको अपने अपने राज्य में स्टार्ट करें। ओके, सो पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी से। इसे ऑल ओवर 73rd अमेंडमेंट में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया 1992 में और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में ऐड कर लिया गया। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे जो रूरल एरिया ओवरऑल जो विलेज का डेवलपमेंट होता है वो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पंचायती राज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? बलवंत राय मेहता कमेटी से। अब बात करते हैं द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज में जो विलेज पंचायत है, पंचायत समिति है और जिस जिला परिषद जो सबसे लास्ट और लेवल की टायर है, उसमें क्या और कैसे किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आता है विलेज पंचायत। एक्चुअली द विलेज पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर इन द पंचायती राज सिस्टम। ओके, विलेज पंचायत क्या है? फर्स्ट टायर है किसका? पंचायती राज सिस्टम का। इट इज़ नोन एज पंचायत इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इट इज़ नोन एज द ग्राम पंचायत इन पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. In Uttar Pradesh, Assam and Gujarat, it is known as Gaon Panchayat. Means we can say that the name of village panchayat is different in the different state according to the state. Tamil Nadu, Maharashtra and in Andhra Pradesh it is known as the Panchayat, and in Punjab, Bihar and Madhya Pradesh it is known as the Gram Panchayat. In Gujarat, Andhra Pradesh and Assam it is known as the गांव पंचायत. मीन्स पंचायत विलेज पंचायत को अलग अलग नामों से जानते हैं. ओके, नाउ इट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होती है एक विलेज पंचायत में. द विलेज पंचायत स्पेशली इट हैज़ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक दैट ग्राम सभा, दोज आर नोन एज द विलेज असेंबली. सेकेंड, ग्राम पंचायत, this is known as executive body, and third one, the Nyay Panchayat, the judiciary at the village level. These are three important wings of the village panchayat. Let us study this briefly. So please one time again all of you see that three-tier system of Panchayati Raj, especially what is the function of Gram Sabha, this is very important, and what is the function of Gram Panchayat, and then after what is the function of Nyay Panchayat. So please one time again all of you see that functions of village panchayat, functions of Gram Sabha and function of the Nyay Panchayat. We again discuss about on this topic in next term. Thank you.